দেশৰ শৌৰ্যবীৰ্যৰ প্ৰতীক ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰু সেই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সৈতে আজি আমাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস বিশেষ বন্দে মাতৰম আৰু এই গণতন্ত্ৰ দিৱস বিশেষত আমি দেখুৱাই যাম এওঁলোকৰ পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে তেওঁলোকৰ দিনচৰ্যা পুৱা শৰীৰ চৰ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশাৰ বৰা খানালৈকে আমি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক চাই থাকক আমাৰ সৈতে এই গণতন্ত্ৰ দিৱস বিশেষ বন্দে মাতৰম সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলে শৰীৰ চৰ্চা কৰি আছে এবাৰ আমি পুনে পুনে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাওঁ भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ফিল্ড এৰিয়াত বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু ফিল্ড এৰিয়াত এওঁলোকে কেনেধৰণে শাৰীৰিক কসৰত কৰে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মন কৰিবলগীয়া যে যিকোনো সময়ত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে এওঁলোকে যুঁজিবলৈ সক্ষম তাৰ বাবে শৰীৰৰ সক্ষমতা সদায় বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে শাৰীৰিক কসৰত কৰে বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আৰু আপুনি যদি চাই যে ইমান সহজ কথা নহয় দেশক সুৰক্ষা দিয়াৰ আৰু দেশক সুৰক্ষা দিবৰ বাবে আমাক সুৰক্ষা দিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিখিনি কষ্ট সেই কষ্টখিনি চাওক আৰু এই যিটো তেওঁলোকে যিখিনি এক্সাৰচাইজ কৰিছে ব্যায়াম কৰিছে মোৰ দ্বাৰা অন্তত সম্ভৱ নহয় মই অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ এক মিনিট रुकिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं तो उठा नहीं पा रही हूँ फिर भी बहुत दम से मैं उठा बहुत শক্তিৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ হাত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আমি এবাৰতে এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম নহয় যে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ কৰে সদায় কৰে তেওঁলোকে আৰু সেলুট দিছোঁ আমি ভাৰতীয় সেনাসকলক যে তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাক কেৱল সুৰক্ষা দি আছে দেশবাসীক সুৰক্ষা দি আছে আৰু সেইসকল সেনাৰ কাষত উপস্থিত হৈ আজি আমি গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছোঁ क्लाइम्बिंग मैं करूँ और यथेष्ट कष्ट कि सेनाबाहिनी जवानসকলে সেই कष्ट प्रतिदिन करे सर जी आपका थोड़ा परिचय हम जानना चाहते हैं कैसे दिनचर्या आपका चलता है यहाँ पर जय हिंद मेरा नाम अग्निवीर वेनेराणा है एक कुशल सोल्जर की दिन की शुरुआत पीटी परेड से होती है बिना फिजिकल फिटनेस के एक जवान कभी भी अलग अलग मुश्किल टर्म में ऑपरेट नहीं कर सकता और ना ही अपने वेपन इक्विपमेंट का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकता है मैंने अनुभव किया है कि सुबह सुबह अपने साथियों के साथ पीटी करने से हमारी एकजुटता बढ़ती है जो कि हमारी यूनिट के लिए बहुत ही अनिवार्य है जय हिंद जय हिंद और सचाকৈ এনেধৰণে তেওঁলোকে ৰোপ ক্লাইম্বিং কৰে আৰু মই নিজে কৰি অভিজ্ঞতাটো অৰ্জন কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পায় শাৰীৰিক শক্তিৰ সমান্তৰালকৈ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে সুখাদ্যৰ প্ৰয়োজন আমি শাৰীৰিক ব্যায়াম দেখিলোঁ সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলৰ কিন্তু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত তেওঁলোকে কি খায় সেয়াও আমি চাই লওঁ আহক আপুনি মই প্লেট লৈ লৈছোঁ কিন্তু দেই মই লৈছোঁ প্ৰাঞ্জল সত্তু পৰাঠা মই এখনেই লৈছোঁ বাৰু বা বহুত শকত কিন্তু সত্তু পৰাঠাখন লগতে আলু পিটিকা নেকি চোখা লিটি চোখাৰ চোখাটো মানে আমাৰ অসমীয়াত আলু পিটিকা আৰু চোখা আৰু সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলে বৰ তৃপ্তিৰে এইবোৰ খায় আৰু ইয়া দৈ আছে पराठे के साथ दही बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ दही बहुत
টেষ্টি লাগতা হে আৰু চাটনি বি হে চাটনি আছে পুদিনাৰ চাটনি আছে দুই ৰকমৰ চাটনি আছে মুঠতে খাদ্যৰ পৰিভৰ ইয়াত হয় আৰু সুন্দৰ ৰূপত সেই খাদ্য গ্ৰহণো কৰে সকলোৱে তৃপ্তিৰে গ্ৰহণ কৰে চাহ আছে আমি চাহ ল'ম অলপ পাছত মুঠতে এয়া ব্ৰেকফাষ্ট সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলে শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাৰ পাছত কসৰত কৰাৰ পাছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহক আমি বহি লওঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ সৈতে যদি একেলগে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য আৰু সেই সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী আজি আমি হৈছোঁ হেল্ল' सर जी हम बैठ सकते हैं यहाँ शुक्रिया खा लिया आप लोगों ने अच्छा सत्तू का पराठा जो आप लोग खा रहे हैं इसमें मतलब क्या है कि आपको एनर्जी देता है इससे सत्तू से अच्छा लगता है अच्छा एनर्जी मिलता है ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि चोखा के साथ सत्तू पराठा ये कॉम्बिनेशन अच्छा है ना अच्छा बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है आप लोगों को ब्रेकफास्ट में डे के हिसाब से अलग अलग डे में पूरी सब्जी कभी रोटी सब्जी इस प्रकार से हर दिन कभी सत्तू पराठा इस प्रकार से अलग अलग डे में अलग अलग लिट्टी चोखा अच्छा हाँ प्लेन पराठा भी होता वाह है वाह हर डे के हिसाब से मेन्यू अलग अलग चेंज होता है हाँ तो अभी मैं एक बाइट लेके आप लोगों को बोलूंगी कि क्या बना है कैसा बना है ठीक है ভাল লাগিছে सत्तू पराठा আৰু ইয়াৰ যিটো কম্বিনেশ্যন চখা আলু পিটিকা আমি দৈ নল'লে মই দৈ নাখাওঁ দৈ নাখাই নেকি মই দৈ লৈছোঁ মই দৈৰ লগতো এবাৰ টেষ্ট কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে तो दही की भी जरूरत होती है ना दही की भी बहुत ज़रूरत होती है बहुत शौक से लेते हैं आप लोग दही हम लोग के लिए फेमस पराठे के साथ दही फेमस है हाँ মই সেইকাৰণে লৈছোঁ মই अचार भी है तो हमने नहीं लिया ना अचार মই গোটেইকেইটাই লৈছোঁ চাটনি আচাৰ দৈ আলু পিটিকা গোটেইকেইটাই লৈছোঁ খুব ভাল লাগিছে মই আলু পিটিকাৰ সৈতে এবাৰ জুতি লৈ চাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰে নহয় বৰ্ণনা কৰি পেলাই মানে আপোনালোকৰ হয়তো জিভাৰ পানী আহি যাব আৰু চট্টু পৰাঠা মই আচলতে চট্টু পৰাঠা ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ আলু পৰাঠা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ চট্টু পৰাঠা কৰা নাছিলোঁ বাট সঁচাকৈ ভাল আৰু এনেইতো দিয়া নাই ইয়াত কিবা এটাতো আছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে এনাৰ্জি পায় তেওঁলোকে হেল্ডি এটা খানা তেওঁলোকে খাদ্য এটা আচলতে কি জানেনে সত্তু গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে খুব ভাল বুলি কয় গেষ্ট্ৰিক के लिए भी बहुत अच्छा होता है हाँ মই কৈছোঁ নহয় গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় এই শক্তিও দিয়ে আৰু সাধাৰণতে পুৱাৰ ভাগত যদি সত্তু বা সত্তু পৰঠা খাই লোৱা হয় তেনেহ'লে পেটটো সাফ হৈ থাকে বুলি কয় চাফা হৈ থাকে বুলি मैं सही बोला हाँ पेट साफ रहता है और पेट साफा হৈ থকাটো কামৰ নিপুণতাৰ বাবে বৰ দৰকাৰী काम अच्छे होने के लिए पेट भी साफ होना बहुत जरूरी है পাপৰি দেখিছে আমি কিমান জ্ঞান অৰ্জন কৰিছোঁ ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে আৰু এয়া সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলৰ সৈতে ब्रेकफास्ट हम लोग जो फिल्म में देखते हैं हम लोग आप लोगों के बारे में जितना भी हमें फिल्म में देखे क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम आपसे मिले नहीं है ना ये वाला बहुत बड़ा मौका है जो हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा सा एक एहसास है जो हम बातों से शब्द से हम बयान नहीं कर पाएंगे जो भी हो तो हमें वही सीन में दिखाया जाता है कि आप लोग घर की याद आते हैं घर वालों को आपके याद आते हैं और आप हमेशा अपने जो पर्सनल लाइफ है उनको त्याग करके हमारे लिए आप लोग खड़े हो हमेशा तो यही मैसेज होता है आपके साथ भी तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि ये फैमिली है फैमिली के साथ रहना जैसा लगता है ना लोग आपस में रहते हैं फैमिली की तरह महसूस सब एक जैसा हो गया है ना सब भाई एकदम भाईचारा हो जाता है सभी के साथ एक साथ रहते तो एडजस्ट हो जाता है घर की मतलब हो जाता है ना हम अच्छे हैं ये जो चिट्ठी में आप लोग लिखते हैं ये सच ही लिखते हैं मतलब हम ठीक है फिक्र मत करो आजकल तो मोबाइल का भी जमाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर जरूरत पड़े तो मोबाइल से भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं तो इतना भी परेशानी नहीं होती शायद हाँ हाँ आप थोड़ा दुखी दुखी लग रहे हो क्यों मैं कहीं आपकी दुखती रट पे हाथ तो नहीं रख दिया लेकिन सत्तू पराठा बहुत अच्छा है और एक बात मैंने गौर किया है कि आप लोगों का जो खान पान का रीति है वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ होता है हमने तो ऐसे ही मतलब जो मिला वो खा लिया लेकिन आप लोगों का हमने देखा है कि बहुत सूक्ष्म तरीके से बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप लोगों ने खाया है ऐसा भी कुछ रीति रिवाज है कि ऐसे ही खाना है सेनाबाहिनी में हम लोग डिसिप्लिन से ही जाने जाते हैं इसी वजह से डिसिप्लिन मेंटेन रखना हम लोग का सबसे प्रथम कर्तव्य है इसलिए हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन सही मिलता है हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिसिप्लिन होता है हमने देखा है हमने वहाँ पर जब लिया पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया गया था वहाँ पर मतलब एक बात सही है कि सेनाबाहिनी में
हर काम में डिसिप्लिन होता है, वो एक्सरसाइज करने में हो, खान पान में हो और ड्यूटी देने में हो, हर काम में पूरा डिसिप्लिन। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। डिसिप्लिन पे चल रहा है पूरा। लेकिन और एक अच्छी बात है कि आप लोगों का जो मुंह का हंसी, वो हंसी बहुत सुंदर है, लाजवाब है आप लोगों का हंसी, बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस और हंसी आपका बहुत अच्छा है। ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि सच में जब से हम यहाँ पर आए हैं तो अब तक जितने भी एक्सपीरियंस हमें हुई है तो आप लोग खुश हैं, वही देख के हमें बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी ये बात लगी कि आप लोग अगर इस टाइप से रह सकते हो तो हम लोग सुनिश्चित है कि हम सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। आप लोगों के लिए ही हम वो महसूस कर सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। चलिए, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया। खाइए, बात करते करते हमने डिस्टर्ब कर दिया ना, नहीं खा रहे हमें देखिए ना। आप थोड़ा शर्मा रहे हैं क्या? नहीं, हमने तो खत्म कर दिया, आप लोगों ने अभी खत्म करना आपको भी जरूरी है। घर में अपने घर में ही महसूस करते हैं। मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि हमने लास्ट में प्लेट लिया, प्रांजल और मैंने खत्म कर दिया। और ये भाई साहब तो खत्म ही नहीं हो रहे। और एक चाहिए क्या? नहीं धीरे धीरे खाने पे हजम ज्यादा होता है ना। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए शायद दही खाते हैं ना। भी और खाना भी है, बात भी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए बात करते हैं, मिलते हैं फिर से हम, और थोड़ा बहुत बात करते हैं अभी, थोड़ा बहुत हम घूमते हैं, बात करते हैं। सर जी हमारे साथ है, सर जी से भी हम बात करेंगे। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया आप लोगों के साथ, जबानों के साथ। जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ, हमने थोड़ा बहुत बातें भी की। तो बताइए, तो ये ब्रेकफास्ट का जो ये पंडाल है, ये तो बैम्बू से बनाया गया है? बिल्कुल बम्बू से बनाया गया है। हाँ, भारतीय सेना में कुक हाउस एक सैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सुरक्षित रहने के लिए ट्रूप्स को पोषित करता है। यहाँ देख रहे हैं आप, व्यवस्थित योजना, विविध मेनू और स्वच्छ व्यवहार को महत्व दिया जाता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य और मोराल को बढ़ावा देने में मदद करता है। देख रहे हैं आप, यहाँ थालियों की टकरार और दोस्ताना मजाक के बीच जवान खुशी के पल यहाँ पर अपना बांटते हैं। कुक हाउस एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो एक जवान को अपने परिवार से दूर रखते हुए भी परिवार के साथ रखता है। बाकी कुक हाउस के बारे में हमारे बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि जवान को दूर रखते हुए भी घर से, लेकिन पास में रखता है। जी। अपना महसूस कराता है, जी। दुख नहीं देता है। जी, कुक हाउस के बारे में थोड़ा बताइए। हमारी बटालियन में 3 कुक हाउस चलते हैं। एक कुक हाउस में लगभग 120 से 130 जवानों का खाना बनाया जाता है। सभी जवानों को समय समय पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का प्रोवाइड किया जाता है। जवानों की हार्ड ट्रेनिंग और दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए हेल्थ, हाइजीन और कैलोरी का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए जवानों को समय समय पर वेज, नॉन वेज, एग्स और फ्रूट का प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अभी हमें आपके सामने नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जो कि टाइम पर उसे किया जाता है। बहुत सुंदर है। बात रिश्तों की भी होती है। मान लीजिए कि ये कुक हाउस जो है, इसमें बहुत सारे रिश्ते बनते भी हैं। जी, जो कि हमने इन लोगों से बात की, तो इन लोगों ने कहा कि ये हमारे घर जैसा है। घर ही है, जी। घर अलग बात है, ये घर है हमारा, ये फैमिली है हमारा। तो बोलते हैं ना कि रिश्ता जो है वो पेट से होकर आता है, मुंह से पेट तक जाता है, फिर रिश्ता बनाता है। तो ये खाना एक उसी हिसाब से बनते होंगे, इसीलिए रिश्ता इतना अच्छा है। रिश्ता इतना अच्छा होने के कारण ये भी है कि 1 साल का 9 महीने हम यहाँ बिताते हैं, अपने घर में 3 महीना बिताते हैं। तो हमारा पहला घर यही होता है और हमारा परिवार यही है। এয়া হৈছে ভাৰতীয় সেনা আৰু ভলীবল খেলি আছে তেওঁলোকে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যে ভাৰতীয় সেনাৰ খেলুৱৈসকল আগৰণুৱা
সেয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন আন ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু ভাৰতীয় সেনাৰ খেলুৱৈসকল পিছ পৰি নাযায় ভলীবলটো আমাৰ লগতে আছে তেওঁলোকেও খেলি আছে কেইবাটাও বল আছে ইয়াত নিশ্চয় মোৰ হাততো বল আছে কিন্তু মই নেখেলোঁ কাৰণ মই খেলিব ভালকৈ নাজানো আৰু তেওঁলোকক মই ডিষ্টাৰ্ব দিয়াৰ নিচিনা হ'ব যিহেতু খেলৰ কথা যেতিয়া আহিছে প্ৰাঞ্জল তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব আমি ভাৰতীয় সেনাৰ কথা ক'বই লাগিব কাৰণ ভাৰতীয় সেনাই সদায় আমাৰ ভাৰতৰ নাম শিখৰত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে খেলৰ জৰিয়তে অলিম্পিকলৈকে তেওঁলোক গৈছে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিছে মিলখা সিঙৰ কথাই কওঁ ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোৰৰ কথাই কওঁ অথবা শেহতীয়াকৈ গল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাৰ কথাই কওঁ প্ৰতিগৰাকীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সফলতা অৰ্জন কৰিছে বিশেষকৈ অলিম্পিকলৈকে তেওঁলোক গৈছে আৰু অলিম্পিকলৈকে গৈ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰে এটা উদাহৰণ বৰ্তমান এইসকল ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান দুটা গোটত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে এয়া ভলীবল খেলি আছে ইয়াতকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ কি হ'ব পাৰে এবাৰ আপোনালোকে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে খেলি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই আছে প্ৰতিদিনেই এই অনুশীলন চলে আৰু এইসকল জোৱানৰ দিশটোলৈ চালে মন কৰিব যে তেওঁলোকৰ সেই পদাৰ্থক ভাৱধাৰাটো আছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বল লাগিব পাৰে বুলি ভয় লাগিছে নেকি বল লাগিব পাৰে বুলি আমি ভয় খাব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ভয় নাখায় তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে আৰু প্ৰত্যেক দিনা তেওঁলোকে অনুশীলনত আচলতে এই কথাবোৰে ৰাখে আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বাবে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ফিজিকেল ফিটনেছৰ প্ৰয়োজন সেইবাবে আৰু লগতে তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে যেতিয়া আমি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ফিজিকেল ফিটনেছৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আমাক কৈছিলে আৰু কিহৰ বাবে প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোক ফিট থাকিব লাগে আৰু গোটেই দিন জুৰি তেওঁলোকৰ এই কাৰ্য চলি থাকে তেওঁলোকে এনেই অবাবত সময় নষ্ট নকৰে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে শাৰীৰিক কষ্ট কৰে ব্যায়াম কৰে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে আকৌ এনেধৰণে যদি সময় পায় তেওঁলোকৰ যিবোৰ খেলুৱৈসকল আছে সেই খেলুৱৈসকলে খেলত মত্ত হৈ থাকে আৰু বিভিন্ন খেল খেলি থাকে ইয়াত ভলীবল খেলি আছে ক'ৰবাত বাস্কেটবল খেলি থাকে আন ক'ৰবাত অন্য কিবা চলিয়ে থাকে আৰু অলপ পাছত আমি আপোনালোকক ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে বাস্কেটবল দেখুৱাম আৰু নিশাৰ ভাগলৈ আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু সেই অনুষ্ঠান আছে সেই কাৰ্যসূচী আছে সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত কেৱল মাথো চাওক নিউজ 18 থাকক আমাৰ সৈতে আৰু আমি ভাষ্য ল'ম বহুজনৰ এই ভলীবল খেলুৱৈসকলৰ মাজৰে কিছু একাংশৰ ভাষ্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক নেতৃত্ব দিয়া লোকৰ ভাষ্য ল'ম আৰু নিউজ 18ত এয়া গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী এনেধৰণেই চলি থাকিব ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ভাৰতীয় সেনাৰ এইসকল জোৱানে এনেধৰণেই খেলত মজগুল হৈ আছে আৰু খেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা গুৰুত্বতা বহুত বেছি সেনাবাহিনীত এজন আমাৰ সৈতে জোৱান আছে ভাৰতীয় সেনাৰ आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के इस कार्यक्रम में तो महत्व बताइए खेल का महत्व भारतीय सेना में कितना है भारतीय सेना में खेलों का काफ़ी महत्व है और ये सभी जवानों के बीच जो है वो तालमेल को बनाता है और इससे सभी रैंक जो हैं वो अपनी जो अपॉइंटमेंट की परवाह ना करते हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है आगे बढ़ते हैं इसके साथ यूनिट की रूटीन में इसकी जो है ख़ास अहमियत है इससे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक जवान के अंदर आत्मविश्वास आता है और आपसी भाईचारे को इससे बढ़ावा मिलता है और टीम स्पोर्ट्स जैसे कि हम लोग हैंडबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल हॉकी ये आमतौर पर डेली बेसिस पर हम गेम परेड्स में खेलते हैं इससे जवान की जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ती है और साथ ही साथ उसके मानसिक जो है लचीलापन भी आता है तो उसकी जो टीम स्पिरिट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यूनिट ब्रिगेड और डिवीज़न के स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जो हैं वो आयोजित की जाती हैं और इन प्रतियोगिताओं में बढ़िया प्रदर्शन करना और उन प्रतियोगिताओं को जीतना ये जो है एक यूनिट के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए बड़ी गर्व की बात होती है जरूर बहुत गर्व की बात है আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ নীৰজ চোপ্ৰাৰ কথা লগতে ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোৰৰ কথা মিলখা সিঙৰ কথা তেওঁলোক হ'ল আমাৰ বাবে গৌৰৱ আৰু কেৱল ভলীবলেই নহয় আন বহুতো খেল ইয়াত চলি থাকে এইবাৰ আমি বাস্কেটবলৰ সেই স্থানলৈ যাম